महानिदेशक मुख्यालय केंद्र लोक निर्माण विभाग के शैलेंद्र शर्मा जी तथा इस समारोह में उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जुड़े हुए अधिकारी गणों, कर्मचारियों व सभी सदस्यों का मैं दीप्ति सक्सेना, सहायक निदेशक उद्यान, केंद्र लोक निर्माण विभाग के 167वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो चलिए हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखते हुए इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री कौशल किशोर जी से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन की विधि को आरंभ करें तथा आदरणीय सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आदरणीय महानिदेशक श्री विनीत कुमार जायसवाल जी तथा विशेष महानिदेशक मुख्यालय श्री शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री महोदय जी का दीप प्रज्वलन करने में सहायता करें। जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय विशेष महानिदेशक मुख्यालय केंद्र लोक निर्माण विभाग की शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ उपस्थित वशिष्ठ अतिथि माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय श्री पीएस चौहान जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PRND जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ उपस्थित अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय का स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री विनीत कुमार जायसवाल जी, महानिदेशक केंद्र लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द कहकर समारोह को संबोधित करें। Dear friends, and all other colleagues, ladies and gentlemen, good morning and warm welcome. It is an honor to welcome the distinguished guests on the occasion of participation in CWD. We are celebrating in a very simple manner as a low people, but a large group of audience has joined us online to be a part of this important event. I extend warm welcome to them all. We are privileged as Honorable Minister of Representing us. Sirs, your kind words, motivation and guidance are the source of inspiration for us. We in CPWD work as a team, like members of a close-knit family. I congratulate each member of the large family on our 167th anniversary. I convey my appreciation to each one of you for contributing to the growth and progress of the party. I also take this opportunity to extend my gratitude to a large esteemed clientele for reposing faith in us. Our achievements have been significant in terms of the speed and quality of construction, sustainable and green development, with emphasis on energy and water efficiency, adoption of new technologies, use of construction and demolition waste, improvement of maintenance services, human resource management, e-governance initiatives, and publication of technical documents and standards. Implementation of comprehensive enterprise resource planning,
will rejuvenate the department by unlocking its latent productivity, efficiency, and propel us to a high growth path. We achieved the workload of 13,400 crores in the year 2021, which is 10% higher as compared to the previous year. Our aim this year is to increase the workload by 12% to rupees 15,000 crores. Some of the important works in progress are new parliament building, redevelopment of Central Vista Avenue, AIIMS at Bhubaneswar and Avantipur, IITs, IIMs at many places throughout the country, KVs, infrastructure, CAPFs, and border roads and fencing in difficult terrains. Most of our engineers and architects have also completed 3 courses on Vulnerability Atlas of India and Navri, which is a certificate course on innovative construction technology. On HR front, we are closely monitoring the issues related to recruitment, promotions, NFUs, and MSCPs of all cadres. Much progress has been made with the result that dynamic career benefits are given to each and everyone. I would like to highlight some of the HR achievements. Some 9 ADGs have been promoted to the grade of SDG, 13 chief engineers or equivalent have been promoted to the grade of ADGs. 1 director has been promoted as DDG horticulture. 13 superintending engineers have been promoted to the grade of chief engineer and chief architect. NSC has been granted to some 22 chief engineers and 2 chief architects. 9 executive engineers, 3 in electrical and 9 in civil, and 7 architects have also been promoted to the grade of SC and senior architect respectively. Deputy architects have been promoted to the grade of architect. 72 assistant executive engineers have been promoted to the grade of executive engineer. 49 assistant engineers have been promoted as E. 178 junior engineers civil and 77 junior engineers electrical have been promoted as E. 13 section officers of horticulture have been promoted as assistant director, and so on. A special EG desk has been opened to expedite disposal of public grievances related to COVID-19. All PG cases are disposed of promptly. Our theme this year is sustainable development for Atmanirbhar. We will promote the use of locally available materials, local architecture, and green technologies. Our focus will continue to be on buildings which are earthquake and climate resistant, energy and water efficient, functional and modern, with economy and quality both in construction and maintenance. We resolve on this foundation day that will continue to work with determination, sincerity, and integrity by contributing to build the nation. Before I conclude, I convey my gratitude to the Honorable Ministers who have taken time out of their busy schedule to bless us. Thank you, sir. Jai Hind. अब प्रस्तुत है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों पर आधारित एक लघु फिल्म। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से अनुरोध है कि वो क्लिक बटन दबाकर इस फिल्म का उद्घाटन करें। अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय। लद्दाख से कन्याकुमारी और सुदूर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक भारत का परिदृश्य बदल रहा है। हर क्षेत्र में आधारभूत मौलिक संरचना का विकास और विस्तार हो रहा है। हमारा देश आर्थिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान स्थापित कर रहा है। देश की प्रगति में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
CPWD द्वारा निरंतर योगदान दिया गया है। विभाग का 167 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। विभाग की अद्वितीय कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता के उदाहरण है संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, सेबी, जवाहर भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की 167 एनिवर्सरी पर पूरे CPWD परिवार को बधाई। कोविड काल में भी CPWD ने विकास की निरंतरता बनाए रखी है और राष्ट्र निर्माण की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर पूरी गति से काम जारी रखा है। देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य के विभागों और परिसरों की संरचना, विकास और निर्माण में NIT गोवा, IIM अमृतसर, IIT भिलाई, IIM सिरमौर, IISER तिरुपति, IIM बोधगया, IIT एवं IIM जम्मू, एम्स अवंतीपुरा अति उल्लेखनीय है। CPWD हिंदुस्तान के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाया चला है। जो भी दिशा निर्देश मिले उनको बखूबी पालन करते हुए CPWD के अधिकारी कर्मचारी तब से अब तक लगातार उसका अनुपालन करते चले आए। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए 4 फरवरी 2021 को भूमि पूजन संपन्न किया। स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा इनका निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है और तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। समय सीमा पर कार्य संपादन, निर्माण कार्य में गुणवत्ता, नवीनता एवं उपयोगकर्ता की संतुष्टि व विश्वास हमारा प्रमुख ध्येय है। अतुल्य कार्य क्षमता और कुशलता, निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का अभिनव प्रयोग और गुणवत्ता के लिए CPWD एक विश्वसनीय नाम है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का अंगीकार इस विभाग ने किया है, आज नई नई टेक्नोलॉजी को तमाम सारे जगह पे जो कि रिसोर्स एफिशिएंट भी है, बहुत तेजी से कार्य भी करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट भी है और यही नहीं बल्कि ओवरऑल हमारा सही प्रकार से उसका प्रयोग होकर के वो डिजास्टर से भी और क्लाइमेट से भी रेजिलिएंट है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए मैं अपने लोक निर्माण विभाग के सारे लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। ये समय है जबकि आप इनोवेशन के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस निर्माण कार्य में आप अपना भरपूर सहयोग दे करके इस राष्ट्र निर्माण को पूरा करें। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के क्षेत्र में विभाग द्वारा उल्लेखनीय प्रयास है। स्थानीय संसाधनों और आधुनिक तकनीक का प्रयोग, स्थानीय मानव संसाधन को जोड़ना एवं प्रशिक्षण से उनका कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण। हमारा संकल्प है सतत विकास द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। इस दिशा में हम जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन प्लांट्स के शेड्स और सीमाओं पर सड़कों का निर्माण आदि कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा भवनों के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट की व्यवस्था को बढ़ाया गया है। ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भवनों में
LED लाइट्स तथा रूफटॉप सोलर पैनल का उपयोग किया जा रहा है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता हमारी विशेषता है। हम अपने कार्यों की ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटली मॉनिटरिंग करते हैं और ERP का क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। CPWD ऑफिसर्स वर्कर्स एसोसिएशन हमारे सामाजिक दायित्व के कार्यों का निर्वाह करते हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, शिक्षा और खेलकूद का आयोजन और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध करता है। हमें गर्व है, हम देश के 600 से अधिक विभागों के लिए निःशुल्क काम कर रहे हैं। CPWD परिवार के सभी सदस्यों को 167 स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। विभाग की प्रगति में आपके योगदान के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। इस वर्ष हमारा वर्कलोड का लक्ष्य 15,000 करोड़ का है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। 167 वर्षों से लगातार हर कदम देश के विकास के साथ CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। चलिए अब हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कुछ विभागीय पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से निवेदन करती हूँ कि वो निम्न विभागीय पुस्तकों का विमोचन करें। पहला, दिल्ली शेड्यूल ऑफ ग्रेड्स 2021। ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर प्रकाशित सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए एक व्यापक और उपयोगी तकनीकी दस्तावेज है। दूसरा, एनालिसिस ऑफ रेट फॉर दिल्ली 2021। यह DAR 2019 का संशोधित संस्करण है, जिसमें एनालिसिस ऑफ एक्जिस्टिंग आइटम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग न्यू आइटम्स को भी शामिल किया गया है। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से निवेदन करती हूँ कि वो निम्न विभागीय पुस्तकों को विमोचन करें। पहला, प्लिंथ एरिया रेट 2021। यह निर्माण क्षेत्र में इंजीनियरों द्वारा परियोजना और विकास कार्यों की प्रारंभिक लागत का अनुमान तैयार करने के लिए एक उपयोगी तकनीकी दस्तावेज है, जिसका उपयोग सिर्फ CPWD ही नहीं बल्कि अन्य संगठन, PSU, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स एंड वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स भी करते हैं। दूसरा, इनलिस्टमेंट रूल फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स 2021। यह कॉन्ट्रैक्टर्स के इनलिस्टमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग राज्य सरकार के विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कॉन्ट्रैक्टर के इनलिस्टमेंट के लिए करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय जी से निवेदन करती हूँ कि वे निम्न विभागीय पुस्तकों का विमोचन करें। पहला, CPWD फ्लोरा टैब्लो अ ट्रेजर कलेक्शन। यह पिछले 38 वर्षों के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित दूसरा, निर्माण भारती 2021 हमारी वार्षिक पत्रिका है, जो कि विभाग की पूरे वर्ष की उपलब्धियों और गतिविधियों को दर्शाती है। धन्यवाद सर। आदरणीय श्री विनीत कुमार जायसवाल जी, महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से आग्रह है कि वो टेलीफोन डायरेक्टरी 2021 का विमोचन करें। टेलीफोन डायरेक्टरी 2021 जिसमें CPWD अधिकारियों के नाम, उनके कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर के अनुसार। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से फिर से अनुरोध करती हूँ कि वे ERP से संबंधित ई-मॉड्यूल का विमोचन करें। पहला, इम्प्लीमेंटेशन वेबसाइट। यह वेबसाइट हमारी सभी इंटरनल स्टेकहोल्डर के लिए ERP इम्प्लीमेंटेशन संबंधित सभी गतिविधियों के लिए संचार व प्रशिक्षण के प्रमुख चैनल और सूचना के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगी। Key features of ERP implementation website are unique interface, sleek design, user-friendly and easy to navigate, responsive, renders well on variety of devices, browsers, operative systems,
and screen sizes for minimum to maximum display size. ERP implementation deployment on ultra-modern cloud allows 24/7 availability, reliability, scalability, high-grade security, and easy access from anywhere. हमारी दूसरी है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा मॉड्यूल जो लॉन्च हो रहा है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा ई-लर्निंग का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। Unique features of CPWD learning management systems are all trainings can be managed and conducted using various channels such as classrooms or virtual. Provision to manage and deliver self-paced courses. Customized access to trainings based user type and designation. Course catalog. Complete library of courses and training managed by CPWD training centers. Provision to assess learning quotations by conducting online quizzes after each training. Issue certificate to participate after successful completion of courses. User can also provide feedbacks and rating to the courses for further improvement of courses. User can view and download the list of training completed during the current year. Emails and SMS notification to the users and associated stakeholders in the event of successful enrollment, successful completions of the training, etc. Training publication approval workflow. तीसरा मॉड्यूल हमारा है, धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से निवेदन करती हूँ कि वो ERP से संबंधित लोगों का अनावरण करें। निर्मित लोगो CPWD लोगो के आधार पर बनाया गया संगठन में प्रौद्योगिकी संचालित डिजिटल परिवर्तन द्वारा उत्कृष्टता के अगले स्तर तक ले जाया जा रहा है। The निर्मित logo built over the CPWD logo is intended to instill a sense of pride in the glorious legacy of CPWD being taken forward to the next level of excellence, powered by intelligent and technology-driven digital transformation across the organization. The eNirmit logo and acronyms will be used on all the web portals, pages of eNirmit, the CPWD ERP for easy recognition and sense of belonging to the user. धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से निवेदन करूंगी कि वो इस समारोह को संबोधित करें।